Hello children, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 2 Forest and Wildlife Resources. In the previous video, we had seen that the forest and wildlife resources are very important for the human life. So children, forest and wildlife are also very important to balance the ecosystem. So let's see today's topic. So children, today's topic is what are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna. दिस इज़ द पेज नंबर 15. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फ्लोरा और फ्यूना है मीन्स जो कि हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं वनस्पतियां हैं वेजिटेशन मीन्स और जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उनको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो फैक्टर्स क्या हैं और किस तरह से वो उनका हमारी धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं, किस तरह का खतरा उनके ऊपर है. सो लेट्स सी. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. Wood, barks, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. So it is we ourselves who have depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. Even after independence, agriculture expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. तो children देखिए आप ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं. वुड है, बाग से, लीव से, रबर. कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली हम पाते हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली हम पाते हैं. तो हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी डिपेंडेंट जैसे इनडायरेक्टली, जैसे कि वाइल्ड लाइफ जितने भी छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर के बड़े वो सारे क्या करेंगे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं और जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम क्या है हमारी लाइफ जो है स्पॉइल हो जाएगी. और हमने बहुत सारा प्रगति की है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया है रेलवेज़ में, एग्रीकल्चर में, कॉमर्शियल सेक्टर में, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, माइनिंग एक्टिविटीज़ में. तो यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस के बाद तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई और साथ में एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन का उपयोग भी बढ़ता गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे उनको कट करते गए. चलिए हम नोट्स के थ्रू इसे ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं. सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट राइटिंग. What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? We have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. It is we ourselves who have depleted our forest and wildlife. The major causes of depletion of forest resources between 1951 and 1980, accordingly to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer. The large-scale development project has also contributed significantly to the loss of forest. 1951 over 5,000 square kilometer forest was cleared for River Valley project, Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 hectare of forest. These protected areas thus mean different things to different people, and therein lies the fertile ground for conflicts, habitat destruction, hunting, poaching over, exploitation, environmental pollution, poisoning, and forest fires are factors. Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. American consumption 40 times more resources than an average Somalian. The richest 5% of India society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. Women bear the major responsibilities for collection of fuel
fodder, water, and other basic substances needs. Poverty, in this case, is a direct outcome to environmental destruction. This is imperative to adopt to sound forest and wildlife conservation strategies. तो children, देखिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो हमारा वनस्पति है, जो हमारे प्राणी जगत है, वो सारा डिस्ट्रॉय हुआ है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से बहुत सारी चीज़ें पाते हैं। और लेकिन 1951 से 1980 तक लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर की जो धरती है फॉरेस्ट की, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब इतनी धरती का नुकसान हुआ, इतने फॉरेस्ट ख़त्म हुए, और इतने बड़े स्केल में फॉरेस्ट ख़त्म होने का सबसे बड़ा श्रेय हमने जो डेवलपमेंट किया उसी को जाता है। 1951 में लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो थे उनको क्लियर कर दिया गया। किसके लिए? रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, उसमें लगभग 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो थे उनको नष्ट किया गया। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हंटिंग है, डिस्ट्रक्शन है हैबिटेट का, एक्सप्लॉइटेशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ों ये फैक्टर्स भी हैं। फायर हो जाती है कई बार, तो ये फैक्टर्स हैं, ये भी जो है जो नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, तो ये चीज़ें भी जो है हमारे एनवायरनमेंट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो है वो कम हो गए हैं। इसका एक कारण गरीबी भी है। बहुत सारी जो वीमेन है खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ जला देते हैं, बहुत सारे पानी के जो सोर्सेस हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती है वीमेन के पास रहती, तो वो फॉरेस्ट के द्वारा इनकी पूर्ति करते हैं। बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तब भी हमने जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उससे हमने हमारे जो फॉरेस्ट है उनको और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया है। अब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में पावर्टी ने भी एक बहुत अहम रोल निभाया है, और इस सब को रोकने के लिए हमें कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं जो उन्हें अपनाना होगा, ताकि हम जो फॉरेस्ट है उनको नुकसान होने से बचा सकें। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब हम कैसे करें कंजर्वेशन फॉरेस्ट का, ताकि हमारा और जो दूसरे वन्य प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनका जीवन बचा रह सके। तो चलिए देखते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ अ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम असेंशियल। In the 1960s and 1970s, conservation demanded a national wildlife protection program. यहाँ 1970s है, 1070s का रद्द लिख गया है। Protection program. The Indian Wildlife Act was implemented in 1972 with various provisions for protecting habitats. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger. We have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. तो चिल्ड्रन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं, और इन प्रयासों में उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो 1960 से 1970 में ये नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया गया, और जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो पास किया गया 1972 में, ताकि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो, जो भी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार के वाइल्ड लाइफ हो, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने हंटिंग वगैरह पर भी रोक लगाई, उन्होंने ट्रेड पर भी रोक लगाई। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ताकि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है वो किया जा सके। नाउ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। अब देखिए कौन कौन से एक्ट जो है वो बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, उसको देख लेते हैं। एन एक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया passed in 1972 contains a list of protected species in the
country. The ban on hunting was imposed. Legal protection was provided to the habitats of endangered species. Restrictions on trade in wildlife, established national parks and wildlife sanctuaries throughout the country. Projects such as Project Tiger, Project Elephant, etc., that were specific to a particular species were formulated. Project Tiger initiated in 1973. Tiger population has dwindled to about 1800 from 55,000 in the early 20th century. अब देखिए बहुत सारे यहाँ पर एक्ट पास किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको कंजर्व किया जा सके और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन के लिए एक्ट बनाया गया और 1972 में एक्ट पास किया गया। और इसके साथ बहुत सारी जो स्पेसीज़ होती हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई कि किस किस को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हंटिंग को बैन किया गया और जितने भी स्पेसीज़ हैं जो मतलब जो खतरे में आ गई हैं उनको लीगली प्रोटेक्शन प्रदान करना शुरू किया गया। जितने भी ट्रेड मतलब व्यापार होता था वाइल्ड लाइफ का, हाथी के दांतों का है, स्किन का हो रहा है, तो उन सब पे रोक लगाई गई और बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट लाए गए ताकि इन स्पेसीज़ को, पर्टिकुलर स्पेसीज़ को सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लागू किया गया। टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, जो कि 20वीं सेंचुरी में काफ़ी कम हो गई, उसे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास किए गए। तो चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट टाइगर को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर किस तरह से लाया गया, किस तरह से उसको लागू किया गया कि टाइगर्स को बचाया जा सके विलुप्त होने से।